Hello, good morning all of you. Now today's topic is chemical properties. In previous lecture we discussed about the nomenclature, introduction, classification, method of preparation, physical properties and optical activities. So the next topic is chemical properties. Okay, now the chemical properties of the alkyl halide, it is explained on the basis of the polarity of the CX bond. The alkyl halides, they are somewhat reactive in nature, and this reactivity of the alkyl halide, it is explained on the basis of the nature of CX bond. Okay, हमने इसके पहले CX बॉन्ड के बारे में देखा हुआ था और केमिकल प्रॉपर्टी इसके पोलैरिटी से रिलेट करेगा. Now in this case X, it is more electrophilic, it is a more electronegative in nature, due to which it carries the partial negative charge, and carbon it carries the partial positive charge, due to which the electronegativity difference is more in case of the carbon and halogen, due to which in this case the polarity developed and CX bond become a polar bond, correct? Polar bond, due to which it dissociates easily into the reactive species. There is a heterolytic fusion is there. Okay, ये जो बॉन्ड CX बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड होने के कारणवश ये बॉन्ड जो होगा ये हेटेरोलिटिकली फ्यूज होगा, मींस ब्रेक होगा, इसका फ्यूजन हेटेरोलिटिकल होगा और ये फॉर्म क्या करेगा यहाँ पे, ओके, प्लस X नेगेटिव, एक स्पीसीज को तैयार किया और यहां पे ये जो X है ये लिविंग ग्रुप करके, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के इसमें यहां से निकल जाएगा, करेक्ट? मींस जनरली इन दिस केस alkyl halide undergoes this substitution reaction. What is the substitution reaction? So this substitution reaction is that reaction in which the one group it is substituted by the, it is replaced by the another group. No doubt in this case X, it is a functional group. ये functional group निकल के दूसरा functional group आएगा और इस alkyl halide से अलग अलग कंपाउंड्स तैयार होंगे, करेक्ट? Now generally in this case the alkyl halide it undergoes the, देखो why it is reactive in nature, because the in alkyl halide CX it is a polar bond. Why it is a polar? Because in this case X it is a more electronegative, due to this electronegativity difference is more, इसके कारणवश यहाँ पे कंबाइनिंग एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आना है, ठीक? So in this case the alkyl halide undergoes the nucleophilic substitution reactions में जाएंगे. इसके पहले थोड़ा सा बेसिक की तरफ और मैं यहाँ पे ये होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide, इसके पहले मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide इट इज डिपेंड अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी होगी, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उसकी जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये कम होगी, कम एनर्जी पे ब्रेक होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर अपन ने देखा था, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ alkyl halide is Ri, it is greater than that of the RBr, greater than that of the RCl, greater than that of the RF. But in this case the reactivity of the alkyl halide
it is depend upon the bulkiness of the alkyl group. Means bulkier alkyl group decreases the reactivity of अल्काइल हैलाइड। समझो ये अल्काइल ग्रुप बल्कि होते जाएगा, उसका मास जब बढ़ते जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम होते जाएगी। सिंपली यहां पे अपन एग्जांपल लेते हैं कि CH3X है और C2H5X है, सो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। नाउ इन दिस केस N ले रहा हूं, C3H7 में सिंपली यहां पे CH3 CH2 CH2X। so in this case reactivity because the bulkiness of this alkyl it is more as compared to this one and this one, ये भी होगा। इसका कारण क्या है, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारणवश ट्रांजिशन स्टेट तैयार होने में दिक्कत जाएगी। देयर इज अ डिफिकल्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू द बल्कीनेस, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। बट इन केस ऑफ द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द अल्काइल हैलाइड तब क्या होगा, तब यहां पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इट इज more. Reason is that in a tertiary alkyl halide the R ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि समझो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझो यहाँ पे होते हैं, तो स्वाभाविक है ये क्या हो गए, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। मींस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर ध्यान दो क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज को डिजाइन किया जा सकता है। ये थोड़ा बेसिक है, ये सारी चीजें आपको समझो समझ में आता है तो नो डाउट कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, द रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है कि रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड, व्हाई इट इज अ रिएक्टिव, बिकॉज़ इट इज अ पोलर, है ना। देयर इज अ नो ब्रेकिंग ऑफ द सीसी बॉन्डिंग, ये सीसी बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी क्योंकि सीसी ये जो यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, बट यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। इसके कारणवश इसका डिसोसिएशन जो होगा ये जल्द होगा क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्जेस तैयार हुए हैं। ओके, तो रिएक्शन में यहां इस अल्काइल हैलाइड में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होने वाला है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहने वाले हैं और कार्बन हैलाइड बॉन्ड भी रहने वाला है, बट कार्बन हैलाइड बॉन्ड ये अंडरगोज डिफ्यूजन। ओके, क्यों, तो ड्यू टू दी पोलैरिटी। बट इसकी रिएक्टिविटी अब कौन जल्दी टूटेगा, तो कौन जल्दी टूटने वाला है, जिसको तोड़ने में एनर्जी कम लगने वाली है वो जल्दी टूटेगा और जल्दी दूसरे के साथ में रिएक्ट करेगा। नो डाउट इन दिस केस द रिएक्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का के ऊपर डिपेंड होती है, तो डिपेंड अपॉन द बॉन्ड लेंथ, करेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द हैलाइड। तो ये इसके पहले अपन ने डिस्कस कर चुके हैं तो इसके तरफ अपन नहीं जाएंगे, सिंपली यहाँ पे ऑर्डर लिखा है। बट यहाँ पे अब अल्काइल ग्रुप समझो अपन लेते हैं और ये एक ही यानी प्राइमरी, सारे प्राइमरी है, ऐसे समय पे क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसा जैसा बल्कीनेस बढ़ेगा अल्काइल ग्रुप का, तो अल्काइल ग्रुप का बल्कीनेस समझो बढ़ता है तो इट हिंडर्ड the formation of the transition state and its transition state वहां पे तैयार होने के, क्योंकि ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि each and every reactant before converts into the product it passes through the transition state। ये मैकेनिज्म अपन जब देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा।
हर एक का रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के पहले उस पर एक स्टेज से गुजरना होता है। दैट स्टेज इज अ ट्रांजिशन स्टेज, जिसके ऊपर उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है, अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, और वहां पे ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स तैयार होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, मैं थोड़ा सा इसके बारे में रफ आइडिया यहाँ पे दे चुका। तो बल्किनेस बढ़ेगा तो ट्रांजिशन स्टेट तैयार करने में वहां पे दिक्कतें जाएगी। बट इन केस ऑफ द आइसोमेरिक अल्काइल, जो हलाइड्स होंगे, जैसा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की अल्काइल मींस अल्काइल तो एक ही है, बट उसके आइसोमर्स समझो है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स अफेक्ट करेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस। इट इज क्लियर? नाउ we will going to nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Okay, so what about the nucleophilic means nucleophile? न्यूक्लियोफाइल 11th में ये हो चुका है। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस, एंड फिलिया मीन्स affinity और affection, ओके, मीन्स ऐसी स्पीसीज होगी। अब न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस यानी क्या, तो पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं अपन, जो अपने एटम का सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। मीन्स ये ऐसी स्पीसीज है जिसको अफेक्शन किसका है, अट्रैक्शन किसका है, न्यूक्लियस का है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट का है। इसका मतलब ये इटसेल्फ जो रहेगा, ये कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रीच रहेगा। कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रीच। इसको अपन इंडिकेट करते हैं Nu नेगेटिव साइन से, ठीक है। So the nucleophile, it is a negatively charged. It is a negatively charged species which is electron rich होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन रिच एंड अटैक टू दैट स्पीसीज which is इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। मींस इसको अफेक्शन किसका है, एफिनिटी किसकी है, न्यूक्लियस की एफिनिटी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण है पर प्लस से परिपूर्ण नहीं है, इसलिए ये अटैक जो करेगा ये किसको करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज को ये अटैक करेगा। सिंपली यहां पे ये समझ में आता है। देखो कार्बन के पास में सही इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली रिच है बट इलेक्ट्रॉन पुअर है। ऐसे समय पे ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। इट इज क्लियर? सो द न्यूक्लियोफाइल दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, लोन पेयर डोनर यहां पे होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में यहां पे आपको बता दिया। अब Nu plus Rx. Now in this case, these paired electron goes to the halogen. Reason is that the halogen, it is a more electronegative. हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा, और हेट्रोलिटिक फ्यूजन जब होगा तो ये X जो रहेगा ये लिविंग ग्रुप रहेगा। इट इज अ लिविंग ग्रुप, लिव कर रहा है और क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से निकल जाएगा। तब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको अटैक करेगा।
makes the bond with the electron deficient carbon of the क्या अल्काइल, और यहां पे तैयार हो जाएगा RNU, करेक्ट, या सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NuR प्लस X नेगेटिव कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां से जो निकला, यहां पे फ्यूजन हुआ, X इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Nu। Nu क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, means in this substitution reaction one nucleophile it is substituted by the another nucleophile, because X जो है ये अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है। क्यों X न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि लोन पेयर इसके पास में है, नेगेटिवली चार्ज है, और इसके पहले मैंने आपको क्लियर किया है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज हो गए। ओके, सो X ये न्यूक्लियोफाइल है, मींस यहां से जो निकला वो लिविंग ग्रुप के इसमें जो निकला वो न्यूक्लियोफाइल के इसमें निकला है, लिव किया है, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उसने कैरी करके, ओके, along with the two shared pair of electron. So no doubt कि such a type of the reaction it is called as the nucleophilic substitution reaction. It is a nucleophilic substitution reaction. चलो अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन एक एक रिएक्शंस को देखते हैं। ये एकदम कॉमन रिएक्शन है, न समझने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है, ये CX बॉन्ड को ब्रेक करना है। CX बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारणवश यहाँ जो X लीव हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में लीव हो रहा है, तो स्वाभाविक है दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करेगा, करेक्ट। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है ये काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे ये होगा कि सबस्ट्रेट कैसा रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, वो मैकेनिज्म में बाद में आएगा, उसका सॉल्वेंट कैसा होगा, तो ये सारी चीजें जो है ये अपन क्लियर करेंगे मैकेनिज्म में। सिंपली अपने को यहाँ पे एक एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है। ओके, नाउ द फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द एक्शन ऑफ aqueous alkali like NaOH or KOH. Action of aqueous alkali like NaOH or KOH. RH plus KOH, aqueous medium, now heating. Okay, when the alkyl halide it is heated with the aqueous KOH, then X it is replaced by, आपको ये देखना है कि यहाँ पे X कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। मैंने आपको इसके पहले क्लियर किया था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। X यहां से निकलेगा तो स्वाभाविक है यहां से ऐसा कौन सा नेगेटिव पार्ट, यहां पे ऐसा कौन सा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड होगा, तो सिंपली इन दिस केस X it is replaced by the OH, so form the ROH. Now it is a alcohol plus the KX, okay, KX. Now in this nucleophilic substitution reaction, X nucleophile it is replaced by the OH nucleophile. So such a type of the nucleophilic substitution reaction it is called as the hydrolysis. It is called as the alkaline hydrolysis. इसको हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं कि हेलोजन जो है, हैलाइड जो ग्रुप है, हेलो ग्रुप जो है इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो कॉल्ड एज द हाइड्रोलाइसिस। एग्जांपल के तौर पे C2H5Br, नाउ इथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH,
hydrolysis. Then corresponding, when alkyl halide it is heated with the KY, then corresponding alkyl alcohol is formed. जितने कार्बन का अल्काइल रहेगा उतने ही कार्बन का यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकिंग किसकी होने वाली है, ओनली CH की ब्रेकिंग होने वाली है. देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ एनी अदर बॉन्ड्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स, इसलिए नो डाउट देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम. कार्बन एटम घटने की कोई यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है. सो इथाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे C2H5OH मींस इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल प्लस द KBr. Now the second reaction is, यहाँ KOH के जो वो आप NaOH भी ये करोगे, इससे बाय प्रोडक्ट जो होगा वो NaBr होगा. Now the action of moist silver oxide, moist silver oxide, correct, silver oxide. Then first of all Ag2O, it is moist है, then formation of AgOH, ठीक है, AgOH twice. Now this AgOH, it is react with the alkyl halide, then RX plus AgOH, but ये काय से मिला है हमें, इससे मिला है, so Ag2O plus H2O now heating. Then simply in this case X, it is replaced by the OH. Okay, again in this case the alcohol is formed plus AgX. एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग ले सकते हो. नाउ द अनदर रिएक्शंस आर, now the third one is action of alcoholic ammonia ठीक है, then RX plus अमोनिया, लोन पेयर है, स्वाभाविक है, न्यूक्लियोफाइल ये लोन पेयर डोनर होता है, ठीक है ना. तो इन दिस केस ऑल्सो यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. X it is replaced by the amino group, so form the, but this reaction it is carried out under pressure. एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करना है इन अ सील ट्यूब, ठीक है ना. एक्सप्लोजिव रिएक्शन होने के कारणवश इट इज कैरिड आउट इन सील ट्यूब एट अबाउट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 373 केल्विन के ऊपर अंडर प्रेशर. देन द RNH2 is formed. Now the alkyl amine, okay. But in this case, during this, there is a formation of, it is a primary amine, but this reaction it is continued, and formation of the secondary amine, tertiary amine, and lastly there is a formation of the quaternary ammonium salt. Okay, so suppose इसको control manner में अपने को reaction को करना है, तो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में क्या करना होगा, अल्काइल हैलाइड को लेना होगा, और एक्सेस क्वांटिटी में क्या करना होगा, इसलिए हम इसको एक्सेस लिखेंगे. सो व्हेन द अल्काइल हैलाइड, कुछ हद तक अपन उसको रोक पाएंगे एट प्राइमरी अमाइंस के ऊपर. देन इन दिस केस द अल्काइल हैलाइड heated with the excess of alcoholic ammonia, then the corresponding alkyl
amine is formed plus the HX. In this case, in this nucleophilic substitution reaction, the X is replaced by the amine, so called as the ammonolysis. It is called as the ammonolysis. Okay, ammonolysis. Example, C2H5Br ethyl bromide plus NH3, then क्या तैयार हो जाएगा C2H5NH2 plus the HBr means इथाइल अमाइन यहाँ पे तैयार हुआ, इथेनामाइन तैयार हुआ मींस इथाइल अमाइन यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते समय अपने को एक ही देखना है कि X ये काइस से सब्स्टिट्यूट होगा, करेक्ट। आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा ये हमें उसमें से समझना है और सिंपली उस तरीके से लिखना है। फिर फोर्थ रिएक्शन इज एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड, करेक्ट, KCN, then RH plus KCN alcoholic. When this alkyl halide it is heated with on reaction with KCN, there is a formation of क्या होगा, CN यहाँ पे निगेटिव होता है, ये आपको मालूम है। ओके, this negative it is replaced by this one negative, यहाँ पे X नेगेटिव है, CN नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा, करेक्ट, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, देन क्या तैयार हुआ, अल्काइल साइनाइड तैयार हुआ, यानी नाइट्राइल्स तैयार हुए। ओके, नाइट्राइल्स तैयार हुए प्लस KX साइनोलिसिस अपन यहां बोलेंगे, बिकॉज इन दिस रिएक्शन देयर इज अ halogen atom, it is replaced by the means X functional group, it is replaced by the CN functional group, so it is a cyanolysis, simply it is a cyanolysis। एग्जांपल के तौर पे CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड प्लस KCN alcoholic, okay, then CH3CN methyl cyanide acetonitrile यहां पे तैयार हुआ, करेक्ट, प्लस the KBr, it is simple। now the fifth reaction is action of silver cyanide means AgCN, ओके, दोनों में साइनाइड ग्रुप है, CN ग्रुप है, देन क्या होगा आप अंदाजा लगाओ, देन जनरल रिएक्शन इज RH प्लस AgCN, no doubt in this case CN, then यहां तैयार होगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, it is a alkyl isocyanide, it is a alkyl isocyanide plus AgX। now in this case one question is arise at the time of the reaction with the AgCN alkyl halide gives the isocyanide, but when it react with the KCN it gives the alkyl cyanide। तो रीजन क्या होना चाहिए, CN ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट यानी
जिसके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट्स होती है, एक से ज्यादा एटम के थ्रू वो अपने बॉन्ड को तैयार कर सकता है, देन कॉल्ड एज द एम्बिडेंट। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंट लिगेंड्स समझो पढ़ा होगा तो वहां पे गया है। एम्बिडेंट C ट्रिपल बॉन्ड N, करेक्ट। ये एम्बिडेंट है। एम्बिडेंट क्यों है? ये देखो कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब नाइट्रोजन इट इज कैपेबल टू फॉर्म द बॉन्ड विद द अनदर। नाउ इन दिस केस यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन आल्सो कैपेबल टू फॉर्म द बॉन्ड। मींस ये जो साइनाइड है, मींस C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये दोनों एटम्स के थ्रू बॉन्ड को तैयार करेगा। सपोज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड देयर इज अ यूज ऑफ कार्बन, समझो कार्बन को यूज होता होगा, तो ये साइनाइड को तैयार करेगा। एंड इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड थ्रू द नाइट्रोजन बाय यूजिंग द नाइट्रोजन, तब वहां पे क्या तैयार होगा? आइसोसाइनाइड तैयार होगा। फिर अभी क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि क्यों भाई KCN हमने वहां लिया था, तो KCN के कारणवश यहां पे साइनाइड क्यों तैयार हुआ और AgCN से आइसोसाइनाइड क्यों तैयार हुआ? तो रीजन ये है कि KCN ये आयोनिक है। आयोनिक होने के कारणवश KCN यहां पे K पॉजिटिव प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, ये तैयार कर देगा। अब ये एम्बिडेंट फॉर्म में आ गया। एम्बिडेंट फॉर्म में आने के कारणवश इन दिस केस दिस ग्रुप जो है ये इट यूज मींस इट फॉर्म द बॉन्ड आइदर बाय कार्बन और नाइट्रोजन। समझो कार्बन यूज होता है तो C बॉन्ड तैयार होगा, यानी ये अल्काइल के कार्बन से बॉन्ड तैयार करेगा। और सपोज नाइट्रोजन के थ्रू करता है तो CN बॉन्ड तैयार होगा, बट CC बॉन्ड इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दी CN बॉन्ड। तो स्वाभाविक है कोई भी क्या तैयार करने को देखेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार करने को देखेगा, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। इसलिए इन केस ऑफ द KCN there is a formation of the cyanide, but in case of the AgCN now ये कोवैलेंट है, ठीक है, ये कोवैलेंट है। कोवैलेंट होने के कारणवश ऑलरेडी कार्बन इट इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल, ओनली देयर इज अ नाइट्रोजन इट इज अवेलेबल टू फॉर्म द बॉन्ड। ऐसे समय पे क्या होगा कि नाइट्रोजन ये यूज होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे ये बिजी है, इसने एक बॉन्ड तैयार कर चुका है, कोवैलेंट कंपाउंड है ये। ऐसे समय पे क्या होगा कि देयर इज अवेलेबिलिटी, मींस यहां पे ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड विद द कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। इसलिए यहां पे जो तैयार होगा वो इस तरह से होगा, करेक्ट, इस तरह से होगा। इसलिए इन केस ऑफ AgCN मींस इन केस ऑफ आयोनिक there is a formation of cyanide, and in case of the covalent then there is a formation of the isocyanate. Is it clear? कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, समझ में आ गया? Now after that the sixth reaction, nucleophilic reaction, is action of sodium alkoxide, means NaOR sodium alkoxide.
सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन समझो अपन करते हैं, देन RX प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, ओके, सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड में आप देख सकते हो कि सोडियम पे कभी भी प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और OR इट बिकम नेगेटिव चार्ज। तो स्वाभाविक है X इट इज रिप्लेस्ड बाय द एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज है, रिच इन इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर डोनर है, मींस लोन पेयर कंटेनिंग है। तो जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तब यहां पे ROR तैयार होगा प्लस NX। नाउ इट इज ईथर, नाउ इट इज अ ईथर, यहां पे तैयार हो गया। नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड एज द विलियमसन्स सिंथेसिस। हम इसको विलियमसन्स सिंथेसिस, because Williamson's prepared simple as well as mixed ether by using the alkyl halide and sodium alkoxide. Is it clear? एग्जाम्पल है यहाँ पे C2H5Br प्लस NaOCH3, क्या सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, करेक्ट। सो C2H5OCH3, ठीक है, C2H5OCH3 मींस इथाइल मिथाइल ईथर यहां पे तैयार हुआ, इथाइल मिथाइल ईथर प्लस NaBr। बट इन केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, समझो यहां पे एखादा ग्रुप ये टर्शरी होगा, है ना। अभी ये तैयार करते समय हमें कोई दिक्कत ये नहीं थी कि भाई यहाँ ये मैं मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकता था, करेक्ट ना। और यहाँ पे मैंने इथाइल ले लिया रहता, ने सोडियम इथॉक्साइड ले लिया रहता, तो भी मुझे ये इथाइल मिथाइल ईथर मिला रहता। पर समझो एखादा अल्काइल ग्रुप ये टर्शरी हो, एखादी ग्रुप ये टर्शरी हो, तब हम कौन से अल्काइल को, मींस सोडियम अल्कोक्साइड से आने वाला अल्काइल को टर्शरी लें या अल्काइल हैलाइड से आने वाले को। तो ये थोड़ा, इसके लिए फिर हमें थोड़ा डिटेल में जाना होगा। तो जनरली मैं थोड़ा हिंट यहाँ पे देता हूं कि ऐसी कंडीशन समझो आती है, देन द टर्शरी जो कंडीशन होगी ये सोडियम एल्कोक्साइड की होगी। जनरली इट प्रेफर्स द प्राइमरी, इसके रीजन काफी सारे हैं, ओके। बस इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करने का, आपको समझो इसके तरफ जाना है तो आप यहाँ पे वर्कआउट कर लेने का। नाउ द सेवंथ रिएक्शन इज एक्शन ऑफ सिल्वर salt of carboxylic acid means fatty acid, carboxylic acid means the fatty acid, then RCOOAG silver salt of fatty acid carboxylate ion। यहाँ पे भी आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो सिंपली इन दिस केस द X is replaced by दिस नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन से। कार्बोक्सिलेट आयन जो है, क्योंकि एसिड है, H जो निकलेगा वो H पॉजिटिव केस में निकलेगा, तो स्वाभाविक है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देन इन दिस केस फॉर्मेशन ऑफ द RCOO, नो डाउट इट इज अ नेगेटिव, नेगेटिव है इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल है, और इट इज अ ester, इट इज ester प्लस AgX, करेक्ट, AgX। एग्जांपल लो कि CH3COO Ag सिल्वर एसेटेट
plus C2H5Br ethyl bromide, okay, then CH3 C2H5 means ethyl मिथाइल ईस्टर नहीं बोल रहे हैं, ओके, इट्स नेम इज इथाइल, करेक्ट। और ये पोर्शन जो है वो एसेटिक एसिड का एक एसिड रिप्लेस बाय ATE, देन इट इज अ इथाइल एसेटेट। इथाइल एसेटेट नोमेनक्लेचर में आपने देखा होगा इस चीज को, पर जनरली हमें आदत होती है इथर पे से या कीटोन पे से कि हम दो अल्काइल ग्रुप का नाम लिख लेते हैं, ओके। तो जनरली इसके एंड पे जो अल्काइल ग्रुप होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ द नेम ऑफ द अल्काइल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द अल्कोहल और द हैलाइड्स से जो आता है, देन राइट डाउन द नेम ऑफ द एसिड बाय रिप्लेसिंग, मींस IC एसिड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस्ड बाय द ATE। तो इथाइल एसेटेट सीधा सीधा एक है कि ये जो एंड के ऊपर जो भी अल्काइल होगा, फर्स्ट राइट डाउन द नेम, है ना, उसका नाम लिखने का, और बाकी के पोर्शन को अपन ने एसिड कंसीडर करते हुए उसका नाम लिखने का, प्लस AgBr, ओके, AgBr। सो मैक्सिमम यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के मैंने रिएक्शंस यहाँ पे देख लिया। आई थिंक बोर्ड के बुक में भी ये सारी रिएक्शंस दी हुई, जनरल रिएक्शंस दी है, मैं एग्जांपल के साथ में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो एक समझ में आया होगा कि ड्यू टू द पोलर नेचर द alkyl halide undergoes the nucleophilic substitution reaction in which the X nucleophile it is replaced by the another nucleophile, correct? So called as the nucleophilic substitution reaction। reactivity orders वहां पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की जो रिएक्शंस है इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन डालेंगे। इसका यहाँ पे इसका ट्री डायग्राम भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा एक देख लेते हैं ताकि आपको इजी होगा। एग्जाम्पल ले सकते हो, सिर्फ जनरल रिएक्शंस जो है ये आपको समझ में आना चाहिए कि रिएक्ट होने वाला जो रिएजेंट है उससे कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। ये थोड़ी सी आइडिया आ गई तो रिएक्शंस आपको इजी हो जाएगी। RX alkyl halide react with the aqueous KOH या NaOH, बराबर है। हीटिंग क्या देगा, करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल को तैयार करेगा प्लस KX। second reaction is Ag2O plus H2 and a moist silver oxide, it gives also alcohol plus AgX। third reaction is action of formation of amines, then alcoholic NH3, so RNH2, okay, heating and pressure plus HX, alcoholic KCN, then RCN, cyanide plus KX, alcoholic AgCN, then
N triple bond C isocyanate plus AgX sodium salts NaOR, then ROR plus NX, RCOOAG, RCOOR ester प्लस AgX। तो एक ट्री डायग्राम, एक चार्ट, इस तरह से भी आप इन रिएक्शंस को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को याद करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताया कि अल्काइल हैलाइड अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट in this case there are two types of the nucleophilic substitution reaction, whether it is the first order or second order, जो chemical kinetics में है कि भाई इसका रेट जो होगा ये काय पे डिपेंड होगा, कितने मॉलिक्यूल्स के ऊपर वहां पे डिपेंड होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, किस तरह से होंगे, कितने स्टेप में वो रिएक्शन होगी, क्या क्या फैक्टर्स उसको रिस्पॉन्सिबल होंगे। Okay, so we will discuss the remaining portion in the next video.